ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਈਕ ਰਿਵਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਲੱਸ ਕੁਝ ਵਰਡ ਦੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਗੋਦਾਵਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਰੀਦਾ ਗੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰੀਦਾ ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨੇ ਰੀਜ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਓਲਡਰ ਰਿਵਰ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਰਿਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤੇ ਥਰਡ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮੇਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆਲਮੋਸਟ ਗੰਗਾ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਫਲੋ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸਾਊਥ 'ਚ ਫਲੋ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਰਿਵਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਆਹੀ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਰੀਦਾ ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੈਰਸਿਟੀ ਔਰ ਕ੍ਰੌਪ ਫੇਲੀਅਰ ਆਫ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੈਨ ਕਾਜ਼ ਇਨ ਸੀਰੀਅਸ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕ੍ਰੌਪ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਕਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸੀਡ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਕਹੀਏ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬਣੇਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜੋ ਬੀ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡਨਟ। ਅਗਰ ਗਰਾਊਂਡਨਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਦ ਪੈਨਾਈਨਜ਼, ਐਲਪਲਾਂਚਿਸ ਐਂਡ ਅਰਾਵਲੀ ਆਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਫ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਨਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਾਵਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਾਵਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮਾਊਂਟਸ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਓਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਸ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਨਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਪਲਾਂਚਿਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਅਰਾਵਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਓਲਡ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Which of the following factors are responsible for present crisis in jute industry in India? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੂਟ ਮਤਲਬ ਪਟਸਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਸੂਟੇਬਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਫਸਟ ਹੈ ਡਿਕਲਾਈਨ ਇਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਇਨਐਡਿਕੁਐਂਸੀ ਸਪਲਾਈ ਆਫ ਰਾ ਜੂਟ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਐਡਿਕੁਐਂਸੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਐਡਿਕੁਏਟ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਮੀ ਆਏਗੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ, ਰਾ ਕੱਚੇ ਪਟਸਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ, ਥਰਡ ਆ ਗਿਆ ਸਟਿਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਪੈਕਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਕਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਹਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਪਟਸਨ ਨੂੰ, ਜੂਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਸੂਟੇਬਲ ਇੰਨਾ ਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਫਸਟ ਟੂ ਹੈ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਕ ਤਾਂ ਏ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਥਰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੀ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਥਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਏ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Which of the following factors are responsible for India's failure to fully exploit the island fisheries during the last 5 decades? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਾਹਦਾ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਲੈਂਡ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਸਟ 5 ਦਸ਼ਕ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਫੇਲੀਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਫਸਟ ਹੈ ਸਿਲਟਿੰਗ ਐਂਡ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਈਲੈਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਡੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ, ਓਬਵੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਹਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਰਿਹਾ?
ਆਈਲੈਂਡ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ 1 and 3 ਬਣੇਗੀ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆਇਆ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ 1 and 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲਾ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੇਜਰ ਪੋਰਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ, ਵਰਡ ਮੇਜਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ, ਮੇਜਰ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਪੋਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਰਿਵਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਰਿਵਰ ਹੈ, ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਰਿਵਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਹਨਾ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਰਿਵਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਤਲੁਜ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹਨਾ, ਸਤਲੁਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਾਵੇਰੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਿਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਰਿਵਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦਕ, ਕੋਸੀ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਥ ਦੀਆਂ ਰਿਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿਮਾਲਯਨ ਰਿਵਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Which of the following is most important raw material for generation of power in India? ਜੇ ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੱਚਾ ਕੋਲਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕੋਲ। ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੂਨ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ, IST ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨੂਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ। ਨੂਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਫਟਰਨੂਨ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਵਜੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5.5 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, 5.5 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਨਾ, 5.5 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੰਡਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ 5.5 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ 6:30 ਵਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 6:30, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ 5.5 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 6:30। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, which country has the largest coastline? ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟਲਾਈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟਲਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Which of the following type of soil are mostly confined to river basins and coastal plain of India? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਬੇਸਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਲੂਵੀਲੀਅਲ ਸੋਇਲ ਹੈ, ਐਲੂਵੀਲੀਅਲ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਲੂਵੀਲੀਅਲ ਸੋਇਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, the two state of India most richly endowed with iron ore, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਓਰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਸਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਓਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਜੀ ਕਰੈਕਟ ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਓਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਮੋਸਟ ਫਰਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੋਸਟ ਫਰਟਾਈਲ ਰੀਜਨ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੋ ਗੈਗਨੈਟਿਕ ਪਲੇਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋ ਗੈਗਨੈਟਿਕ ਪਲੇਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਡੋ ਗੈਗਨੈਟਿਕ ਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਪਲੇਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਸਟ ਫਰਟਾਈਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, which of the following group account for over 90% of India's annual coal production? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਸ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ, ਸੀ ਹੈ, ਡੀ ਹੈ ਤੇ ਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਏ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। The significant shift in Indian agriculture during Green Revolution include, ਹਾਂਜੀ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ known food grains reported some spectacular progress and shift in the cropping pattern. Second ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ major food grain in the eastern region production decrease and in the northern state increase, ਕਿ both A and B ਜਾਂ none of these। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿਓ।
उन्हें पूछा सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन इनकलूड जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई सी तो उस टाइम एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आया सी उनदे विच की सी उन्हें पूछा फर्स्ट और सैकेंड दोनों सही है देखो नॉन फूड ग्रेन्स रिपोर्टेड सम स्पेक्टिकल प्रोग्रेस एंड शिफ्ट इन द क्रॉपिंग पैटर्न वेरी गुड और सेकंड है मेजर फूड ग्रेन्स इन द ईस्टर्न रीजन प्रोडक्शन डिक्रीज एंड इन द नॉर्थर्न स्टेट इनक्रीज अपन भी पता है जी मेजर जी ग्रीन रेवोल्यूशन आई है वो नॉर्थ साइड पर आई है ठीक है तो इस करके यही उन्हें कहा भी जी ईस्टर्न साइड पर जी मेजर फूड ग्रेन डिक्रीज हुए है प्लस जी नॉर्थर्न साइड पर नदरन साइड पर इतने इनक्रीज हुए है नैक्सट क्वेश्चन वाला आप मूव करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज रिगार्डेड एज द प्लांटेशन क्रॉप किहड़ी क्रॉप नूं किहड़ी फसल नूं प्लांटेशन क्रॉप का दर्जा दिता गया तो जिहड़ी कोकोनट क्रॉप है इसनूं प्लांटेशन क्रॉप का दर्जा मिलिया है नैक्सट देखो which of the following countries lead in the production of aluminium and its product in the world कहंदा केड़ी कंट्री है देखो जेडे भी है ना लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया दा स्टेट हो गई लीडिंग प्रोड्यूसर वर्ल्ड दे विच केड़ा हो गया जेडे इस टाइप दे क्वेश्चन है ना इन्हां नूं चंगी तरह करियो रीजन की है क्योंकि जदों तुसीं पटवारी या कोई भी अदर एग्जाम देना है उन्हां दे विच ना इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन अक्सर बन जांदे आ तो तुसीं हुण मैनूं आंसर दो एल्यूमीनियम है जिहड़ा ਉਹ वर्ल्ड दे विच सब तो ज़्यादा कित्थे मिलदा है एल्यूमीनियम हाँ जी आंसर है डी यूएसए दे विच एल्यूमीनियम है जिहड़ा सब तो ज़्यादा मिलता है नैक्सट देखो द नैचुरल रीजन विच होल्ड द इंडियन सब कंटीनेंट इज जिहड़ा नैचुरल रीजन दसना है तुसीं जिहड़ा होल्ड करके रखता है इंडियन सब कंटीनेंट की इक्वेटरल क्लाइमेट चेंज रीजन है हॉट डेजर्ट है मानसून है या मेडिटेरियन है हाँ जी आंसर तो मैनूं जो इसका करैक्ट आंसर होएगा वो मॉनसून है मॉनसून जिहड़ा नैचुरल रीजन है विच होल्ड द इंडियन सब कंटीनेंट आपको पता है इंडिया दे विच मॉनसून होंदी जिवें सब तो पहला केरल दे विच होंदी है तां यही तुहानूं पुछिया सी नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करदे हां द मोस्ट आइडियल रीजन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन हुण कल्टीवेशन ऑफ कॉटन दे लई पहली गल कॉटन दी कल्टीवेशन दे लई ब्लैक सोइल आपां नूं चाहीदी है ब्लैक सोइल नूं रेगूर सोइल भी कहंदे और ये कित्थे सब तो ज़्यादा हुंदी है तां इंडिया दे साउथ दे विच मतलब इंडिया दे डेक्कन प्लेट्यू दे विच नैक्सट क्वेश्चन वाला आपां मूव करदे हां विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू इंडियन जिहड़ा पेनिनसुलर प्लेट्यू है इहदे रिगार्डिंग कहंदा ट्रू की है ठीक है हुण इहदे रिगार्डिंग तुसीं मैनूं ट्रू दसना है इहदे रिगार्डिंग ट्रू पॉइंट किहड़ा है फर्स्ट है पहला तिन्ने ऑप्शंस ध्यान नाल रीड कर लो द सदर्न प्लेट्यू ब्लॉक्स इज फाउंड मेनली ऑफ ग्रेनाइट एंड नीव जिहड़ा सदर्न प्लेट्यू है वो ज्यादातर कहना ग्रेनाइट दे नाल बनिया है सेकंड है द डेक्कन लावा प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड टेबल लैंड कंसिस्टिंग ऑफ हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड लावा शीट मतलब समझा देना कहना जिहड़ा डेक्कन दा प्लेट्यू है वो लावा दे नाल बनिया है लावा मतलब ਜਦੋਂ ज्वालामुखी फटदा है तो उस तो बाद बाहर ਜਿਹੜਾ मटीरियल निकलदा है हॉट मटीरियल ਉਹ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ੀਟਸ ਪਰਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਪਲੇਟਿਊਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਵਰਡ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਊਥ ਹੈ मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ਦੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਥਰਡ ਦੇਖੋ The Malwa Plateau dominates the Vindhyachal scraps forming the northern flank of the plateau ठीक है फोर्थ पॉइंट वाला कर दिया the through of the Narmada and Tapti are interposed between the Vindhyachal and Satpura range ठीक है हुण देखो आपां नूं ये पता है भी लास्ट पॉइंट तो आपां मूव करदे हां ਜਿਹੜੀ ਨਰਮਦਾ ਤੇ ਤਾਪਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿੰਧਿਆਚਲ ਤੇ ਸਤਪੁੜਾ ਰੇਂਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਪਿਕ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਚ ਫੋਰਥ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਹੋ ਗਿਆ मतलब ए ਤੇ बी ਤਾਂ ਕੱਟ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲਾ ਦੇਖੋ ਦ ਮਾਲਵਾ ਪਲੇਟਿਊ ਡੋਮੀਨੇਟ ਦਾ ਵਿੰਧਿਅਮ ਸਕ੍ਰੈਪਸ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ नैक्सट है द डेक्कन मतलब सैकेंड भी 100% सही है क्योंकि आपको पता जो डेक्कन प्लेट्यू है इत्थे काली मिट्टी मिलती है और काली मिट्टी है जी बनी किवें हुई है भी किते ना किते लावा जिहड़ा निकलदा सी धरती चों उत्थों भी बन के तैयार हुई सी ठीक है हुण इहदा मतलब सैकेंड भी सही होएगा सैकेंड सही होएगा तो वो वाली ऑप्शन रीड करो जिहदे च सैकेंड आवे तो बस आंसर टिक कर दो सी मैं तुहानूं 30 सैकेंड देना ध्यान नाल क्वेश्चन नूं रीड कर लो उन्हें क्या किया है एक बार वेख लो चाहे स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो जो 3 पॉइंट है इसनूं ध्यान नाल देख लो इस तो बाद आप अगले क्वेश्चन वाल मूव करते हैं हाँ जी अगला क्वेश्चन देखो द परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल पॉपुलेशन इंप्लॉयड इन एग्रीकल्चर इज नीयरली भी इंडिया की जी टोटल पॉपुलेशन है उनके विचों एग्रीकल्चर ते डिपेंड किन्ने है तां एग्रीकल्चर ते डिपेंड नीयरली 70% है
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंपोर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द वैसटर्न घाट कहता इन्हां चों किहड़ी रिवर है जिहड़ी वैसटर्न घाट तो ओरिजिनेट नहीं हुंदी ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਕਾਵੇਰੀ ਗੋਦਾਵਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਹਾਨਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਲੈਫਟ हैंड साइड इधर मेरे वेस्ट है इस साइड ईस्ट है और ऊपर वाली साइड नॉर्थ है नीचे वाली साउथ साउथ है ठीक है तो ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟ ਤੋਂ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟ ਤੋਂ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ which of the following are or reasons is the most prone to earthquake most important question है ਕਿਹੜਾ most prone ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਰਥਕੁਏਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਵੈਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ ਅਰਥਕੁਏਕ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਨੈਕਸਟ the proportion of forest to the total national geographical area of India is हाँ जी की है कितना प्रपोर्शन है फॉरेस्ट का देखो तीजा हिस्सा है वैसे बुक्स दे विच ही है तीजा हिस्सा एक्चुअल दे विच इस तो भी घट है बट नैशनल फॉरेस्ट पॉलिसी दी रिपोर्ट दे अकॉर्डिंग जो नैशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हर साल एक रिपोर्ट दिंदी है ਜਾਂ इस पॉलिसी दे अकॉर्डिंग मैं सीधे शब्दां च कहां तो जो अपना तीजा हिस्सा है लैंड दा साढ़े जिहड़ा 33.3% है अपना फॉरेस्ट एरिया which of the following dam has generation of power more than irrigation as its main purpose ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਡੈਮ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਗਾਂਧੀ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ which of the following group of river have source of originate in तिब्बत ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਤਿੱਬਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਊਥ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਿੱਬਤ ਕਹ ਲਈਏ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਿਮ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜਸਟ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਕਿਮ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ है ना ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੱਬਤ ਮਿਲੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਯੂਕੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਮਤਲਬ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਾ ਗਈ ਕੱਟੀ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਦੂਸਰੀ ਚ ਵੀ ਗੰਗਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫੋਰਥ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਨਾਬ ਰਾਵੀ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਇੰਦਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਹੈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਿੱਬਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਲੁਜ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਜੇਹਲਮ ਚਨਾਬ ਪੰਜੇ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਸਤਲੁਜ ਰਾਵੀ ਬਿਆਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਨਾਨਮਤੀ ਦੇ ਦੇਗਾ ਉਹ ਕਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਰ ਇੰਡੀਆ ਚ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਚ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੈਜ਼ਰਸ ਆਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਫॉर ਸੋਇਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਮੈਜ਼ਰਸ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਵੋਇਡਿੰਗ ਕ੍ਰੌਪ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਰੀਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਕਰੇਜਿੰਗ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਕੁਐਸਚਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੈਜ਼ਰਸ ਆਰ ਇਫੈਕਟਿਵ ਫॉर ਸੋਇਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹੜੇ ਮੈਜ਼ਰਸ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਏਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਏਫੋਰੈਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੰਗਲ ਲੈਣੇ ਜਿਵੇਂ ਡੀ ਮਤਲਬ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਏ ਮਤਲਬ ਲਗਾਉਣਾ ਫੋਰਥ ਹੈ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹ ਮੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ which of the following crop needs maximum water per hectare ਆ ਦੱਸੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਾਓ ਇਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਲਦੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਜੇ ਮੇਰੀ क्लास लाइव सुन रहे हो तो इस कमेंट बॉक्स करके कमेंट करके मैंने दसो
हाँ जी, मैं तुहाडे आंसर दी वेट कर रहा गाइस। तुसीं सब ने जो आंसर दिता है इन्हां दे विचों जो करैक्ट आंसर आएगा सी आएगा, मतलब शुगर केन। शुगर केन है जिहड़ा ਉਹ ਇਹਨੂੰ मैक्सिमम कंटेंट ऑफ वाटर चाहिए। नैक्सट देखो, द वाटर शैड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इज फाउंड बाय। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੇ म्यांमार ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸ਼ੈਡ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਖਾਸੋ ਨਾਲ, ਜੈਂਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਨਾਗਾ, ਗਾਰੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੇ म्यांमार ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਸ਼ੈਡ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਨਾਗਾ ਹਿਲਸ, ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ। नेक्स्ट क्वेश्चन वाला मूव करते हैं। द ओरिजिनेटिंग इन द हिमालय माउंटेन complex consists of how many distinct drainage system of Indian subcontinent? पहला क्वेश्चन समझ लो। द ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयन माउंटेन complex, ਜਿਹੜਾ ਹਿਮਾਲयन माउंटेन complex है वो कहता इंडिया दे इंडियन सब कंटिनेंट दे किन्ने डिस्टिंक्ट ड्रेनेज सिस्टम नाल बने हैं? 2 3 4 5। तो अपना जो करैक्ट आंसर होएगा वो होएगा 3 3। नैक्सट क्वेश्चन वाला मूव करते हैं। द आउटर हिमालय लाइज बिटवीन, ਜਿਹੜਾ आउटर हिमालय, ਹੁਣ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ 4 ਪਾਰਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸ, ਆਊਟਰ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਇਹ ਕਿੰਦੇ ਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ? ਲੀਜ਼ ਹਿਮਾਲਿਆ ਐਂਡ ਦਾ ਇੰਡੋ ਗਗਨੈਟਿਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਲੀਜ਼ ਹਿਮਾਲਿਆ ਤੇ ਇੰਡੋ ਗਗਨੈਟਿਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Which of the following geographical feature have played a great unifying role in strengthening the forces of homogeneity of Indian people? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਫੀਚਰ ਹੈ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਟਰੈਂਥ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਮੋਜੈਨਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲ ਦੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ expenses of water surrounding the peninsula, expense of water surrounding the peninsula, Himalayan mountain, वेस्टनीज ऑफ कंट्री, द प्रेजेंस ऑफ इंडियन ओशन। तो तुसीं मैनूं आंसर देना है इसका की आएगा। तो जो इसका करैक्ट आंसर होना चाहिए, देखो अगों ना ऑप्शन है 1 2 3, जिवें ए कहता कला एक, बी सी। तो आप पहला ना इन्हां नूं ध्यान नाल देखदे हां। देखो वो कहता भी तुसीं सीधे शब्दां च ऐ समझो भी अपने रहन दे लई अनुकूल है इंडिया। इन्हां चों की फीचर है जिहड़ा इंडिया दे विच लोकां नूं रहण दे लई अनुकूल बनांदा है? सीधा पंजाबी समझो। पहला फीचर है द एक्सपेंसिस ऑफ वाटर सराउंडिंग द पेनिनसुला, भी पेनिनसुलर दे आस पास पानी का जिहड़ा फैलाव है। हिमालय माउंटेन आपां नूं पता है अपने हिमालय नॉर्थ ते आ गया। वास्टनेस ऑफ द कंट्री, कंट्री की वास्टनेस ते प्रेजेंस ऑफ इंडियन ओशन। तुसीं आप सोच के देखो ये चारे ही पॉइंट आउणगे, तो चारे आउणगे तो आंसर की आ गया डी 1 2 3 4। एक 30 सेकंड लो, 4 दे 4 पॉइंट एक बार देख लो भी चारे क्यों आए है। डन। आप अगले क्वेश्चन वाल मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल? मतलब केड़ा ड्रेनेज सिस्टम है? ड्रेनेज सिस्टम मतलब केड़ी नदी है इत्थे कह लो जिहड़ी बंगाल की खाड़ी दे विच डिगदी है? गंगा डिगदी है, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, ब्रह्मपुत्र भी दे विच डिगदी है, ठीक है। उस तो बाद गोदावरी हो सकता है, चलो महानदी, कृष्णा, कावेरी ये भी हो सकता है। लूनी, नर्मदा, ताप्ती ये तो जी 100% ही नहीं है क्योंकि लूनी तो खत्म ही हो जाती है गुजरात के रन ऑफ कच्छ, नर्मदा तो ताप्ती तो दूसरी साइड से लगी। हुण महानदी, कृष्णा, कावेरी ये आपको पता तिनियां ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो जिहड़ियां नर्मदा ते ताप्ती है वैस्ट फ्लोइंग रिवर। अगर उपर गंगा भी आ गई, थल्लों महानदी भी आ गई, है ना, तो इहदा मतलब बोथ ए एंड बी जिहड़ा वो अपना करैक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन वाला आपां मूव करदे हां। आंसर दो जी मैनू। द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज एट, इंडिया की जिहड़ी सब तो पुरानी ऑयल रिफाइनरी वो कित्थे है? तो कित्थे है जी? अपनी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाली साइड, मेघालय के जस्ट उपर वाली स्टेट दे विच, तो उसका नाम है असम डिगबोई। डिगबोई दे विच इंडिया की ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी है। नैक्सट क्वेश्चन, ओल्डेस्ट माउंट इन इंडिया, इंडिया का सब तो पुराना माउंट किहड़ा है? तो अपना आंसर आएगा अरावलीज, आप पहला भी कर चुके हैं। शिमला कन्वेंशन इज एन एग्रीमेंट दैट सेट्स शिमला एज ए टूरिस्ट स्पॉट, शिमला इज द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश, बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत एंड नन ऑफ दीज।
कहना जिहड़े शिमला कन्वेंशन की इंपोर्टेंस की है। तो जी शिमला है, शिमला जी कन्वेंशन है ये एक बाउंड्री का काम करती है किन्ने किन्ने विच, इंडिया ते तिब्बत दे विच। सी आंसर। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस इन द सेनोजिक ईरा। हाँ जी, केड़ा जिहड़ा इवेंट है, फॉर्मेशन ऑफ रॉकीज इंडिया कोलाइड्स विद एशियन, द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय एंड द एल्प्स, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अपलांचेस एंड सेंट्रल यूरोपियन माउंटेन। तुसी दसना है कि सैनोजोइक ईरा दे विच मतलब उस युग दे विच उस टाइम दे विच की होया की सी, केड़ा इवेंट होया सी, ठीक। तां जिहड़ा करैक्ट आंसर आएगा वो आएगा ए की है फॉर्मेशन ऑफ रॉकीज पर्वत श्रेणी दी। इंडिया कोलाइड्स विद एशिया, इंडिया एशिया दे नाल कोलाइड हो गया मतलब जुड़ गया, हिमालय दी फॉर्मेशन हुई ते आल्प्स जिहड़ियां पर्वत श्रेणियां वो सामने आई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया इज, जिहड़ी इंडिया दी ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है वो किहड़ी है, किहड़ी है, हुणे आपां करके हटे हां, डिगबोई इन असम। नेक्स्ट क्वेश्चन वाले मूव करते हैं। अनलाइक अदर पार्ट ऑफ इंडियन कोस्ट, फिशिंग इंडस्ट्री हैज नॉट डिवेलप्ड अलोंग द सौराष्ट्र कोस्ट। कहना बाकी सारे पार्ट तो होगी डिवेलप, लेकिन जी फिशिंग है मतलब मच्छी पालन है वो सौराष्ट्र दे विच डिवेलप नहीं हुई। उन्हें उनके पिछे आपां रीजन पूछा, कहना उनके पिछे जिहड़ा एक्यूरेट रीजन दसो भी सौराष्ट्र दे पिछे, सौराष्ट्र दे विच जिहड़ी फिशिंग कोर्ट है, जिहड़ी फिशिंग इंडस्ट्री है वो डेवलप क्यों नहीं हुई, ठीक है। पहली गल सौराष्ट्र है कित्थे है, भी गल याद रखियो गुजरात दे विच। हुण इहदे पिछे रीजन की है, इहदे पिछे जो एग्जैक्ट रीजन है ऑप्शन नंबर बी, ओवरवेलमिंग डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हसबेंडरी। जिहड़े उस एरिए दे लोग है वो एग्रीकल्चर ते एनिमल हसबेंडरी ते ज़्यादा डिपेंड करते हैं रैदर दैन फिशिंग। नैक्सट देखो, अगले क्वेश्चन वाला आपां मूव करते हैं। द माउंटेन बिल्डिंग इन हिमालय बिगेन, जिहड़ी माउंटेन बननियां शुरू होईयां सी हिमालय दे विच, वो कहंदा कदों तो बननियां शुरू होईयां सी, अबाउट 45 मिलियन अगो when the continent plates of India and Eurasia converged on each other, या both A and B। ध्यान नाल इसदा आंसर दो, तुसीं इहनूं पहलां भी पढ़ चुके हो क्योंकि मैं तैनूं जदों ईरा दी गल चली सी उदों भी दस्सिया सी, युग दे विच कहा सी ना भी कुछ होया सी उस युग च। तो देखो लगभग 45 मिलियन साल पहलां जदों इंडिया ते यूरेशिया कन्वर्ज होना शुरू होए सी, ठीक है, तां उस टाइम ते दी जिहड़ी है वो माउंटेन्स है जिहड़ियां वो बननियां शुरू होईयां। नैक्सट क्वेश्चन वाला आपां मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालय माउंटेन्स। इन्हां चों कहंदा किहड़े ग्रुप ऑफ रिवर है जिहड़ियां हिमालय माउंटेन्स तो निकलदे आ। ब्यास, रावी, चनाब, झेलम, सतलुज, ब्यास, रावी, सतलुज, रावी ते झेलम। इन्हां चों तुसीं आंसर मैनूं करैक्ट देना है, तो जो करैक्ट आंसर आपां नूं सबनूं पता है हिमालय चों ब्यास, रावी ते चनाब निकलदे। नैक्सट देखो, which of the following group of state has the largest deposits of iron ore। आयरन ओर जिवें आपां कहा सी ना सब तो पुरानी ऑयल रिफाइनरी असम डिगबोई दे विच है, उवें आयरन ओर दे जिहड़े भंडार है वो सब तो ज़्यादा कित्थे है, ठीक है। आयरन ओर दे भंडार सब तो ज़्यादा कित्थे है, जो सब तो ज़्यादा है इन्हां दे विचों बिहार ते उड़ीसा दे विच है। तुसीं शायद नोटिस कीता होवे क्वेश्चन सैकेंड टाइम आ रहा है इन्ना, मैं जिहड़े सारे क्वेश्चन पिक कीते ना रिपीटिड क्वेश्चन चक्के है, तो जिहड़े क्वेश्चन आ रहे हैं सैकेंड टाइम आ रहा है, मतलब इन्नी क इहदी वैल्यू हैगी, इहनूं चंगी तरह कर लिओ। नैक्सट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टैरेटरी ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। किहड़ी टैरेटरी दी पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब जिहड़ा संघनापन है वो सब तो ज़्यादा है पर एकड़ दे हिसाब पर किलोमीटर के हिसाब नाल दिल्ली च आपां नूं पता ही है किन्ने ज़्यादा रहिंदे। नैक्सट देखो, विच एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया इज बिल्ट कंप्लीटली इंडिजीनियसली। मतलब इंडिया ने खुद बनाया है, कंप्लीटली इंडिया के द्वारा बनाया गया, केड़ा पावर स्टेशन है, तो आंसर आएगा कालपक्कम। कालपक्कम तुसीं मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच करके कमेंट करके दसना कि कालपक्कम जिहड़ा स्टेशन है कित्थे है, किहड़ी स्टेट दे विच। नैक्सट देखो, द साउथ वैसट मॉनसून कंट्रीब्यूट डैश ऑफ द टोटल रेन इन इंडिया। जिहड़ी साउथ वैसट मॉनसून है इंडिया दे विच किन्ने परसेंट रेन का हिस्सा बनती है, तो आंसर आएगा 86%। देखो जी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
86% ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਊਥ ਵੈਸਟ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, the most plausible explanation of location of Thar desert in western India is, ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਰ ਮਤਲਬ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਥਾਰ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੈਜ਼ਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਹੈ the obstruction caused by Aravali to the rain bearing wind that proceed to the Ganga Valley, नहीं हो सकता। evaporation of moisture by heat, ਜਦੋਂ ਥਾਰ ਮਾਰੂਥਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ evaporation ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? ਥਰਡ, absence of mountains to the north of Rajasthan to cause organic rainfall in it, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੀ ਆਂਸਰ ਕਰੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, the northern boundary of the peninsular plateau of India runs parallel to the Ganga and Yamuna from Rajmahal Hill to the point near, question ध्यान कहता northern boundary of the peninsular plateau of India runs parallel to the Ganga and Yamuna from Rajmahal Hill to point, कहता कित्थों लैके कित्थों तक, मतलब राजमहल तो लैके कित्थों तक एक northern boundary create हो रही है, कित्थों तक है? दिल्ली तक। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਰਾਵਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜਮਹਿਲ ਹਿੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, which of the following food grain crop occupies the largest part of cropped area in India? most important question ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕਰੋਪ ਏਰੀਆ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਰਾਈਸ, ਰਾਈਸ ਦੀ ਚਾਵਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੇਜਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ ਇਨ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਐਜ਼ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਰ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ओल्डेस्ट स्ट्रोक इन इंडिया आर रिपोर्टेड फ्रॉम, ਜਿਹੜੀਆਂ ओल्डेस्ट स्ट्रोक है ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਅਰਾਵਲੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਰੋਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਦ ਈਅਰ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਏ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਵਾਈਨ ਇਨ ਦ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਵਾਈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਈਅਰ 1921 ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਵਾਈਨ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਵਾਈਡ? ਸੌਰੀ ਆਈ ਐਮ ਰੀਡਿੰਗ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਵਾਈਡ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਵਾਈਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਵਾਈਡ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1921 ਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ? ਆਨਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ। ਦ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਸੈਟ ਅਪ ਬਾਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਲਿਮਿਟਡ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਐਟ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਟਰ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਗੁਹਾਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਸਾਮ 'ਚ ਹੈ, ਜਾਮਨਗਰ 'ਚ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹੈ, ਚੇਨਈ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? तो जो इसका करेक्ट आंसर आएगा जामनगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦ ਓਨਲੀ ਸਟੇਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ ਸੈਫਰੋਨ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੈਫਰੋਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, 3 important river of the Indian subcontinent have their source near the Mansarovar lake in Great Himalaya, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 3 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਲੇਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ, ਇੰਦਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ। ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ, ਇੰਦਸ, ਸਤਲੁਜ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬਕੌਂਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਲੇਕ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਦ ਜ਼ੋਨਲ ਸੋਇਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਇੰਡੀਆ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੋਇਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ? ਕਿ ਉਹ ਲਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਯੈਲੋ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਹੈ, ਓਲਡਰ ਐਲਵੀਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈੱਡ ਸੋਇਲ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਸੋਇਲ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਸੋਇਲ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਨਲ ਸੋਇਲ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਇੰਡੀਆ, ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਾਊਥ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਇੰਡੀਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਿਨਸੂਲਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਨਲ ਸੋਇਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਬਣੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੈੱਡ ਸੋਇਲ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, what is predominant type of Indian culture, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਡੋਮੀਨੈਂਟ ਟਾਈਪ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹ
सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है। देखो पहले नंबर होंगे कमर्शियल एग्रीकल्चर, जिन्होंने आप कमर्शियल परपज के लिए यूज करते हैं। एक्सटेंसिव होंगे जी बड़े वड्डे लैवल पर की हो। प्लांटेशन मतलब तो सिर्फ प्लांट लगा रही है। थर्ड आ गया सबसिस्टेंस, मतलब आपदियां नीड्स नूं पूरा करने लई जिहड़ी एग्रीकल्चर की जाती है। फॉर एग्जाम्पल भी मैनू मेरे परिवार नूं जिहड़ी है वो 10 बोरी अनाज चाहिए एक साल का। लेट्स से एक एग्जाम्पल कि मेरे परिवार में 10 बोरी अनाज चाहिए, तो सबसिस्टेंस का मतलब होंगे जिहड़ियां कि आलमोस्ट सिर्फ नीड्स नूं पूरियां करने लई कीता जाता। मैं 10 बोरी अनाज चाहिए तो मैं सिर्फ आलमोस्ट उन्ना कु मान लो 10 की जगह मैं 12 बोरी अनाज जिहड़ा वो प्रोड्यूस कर रहा, ठीक है। तो मतलब की होया कि जिहड़ा सिर्फ एक पर्टिकुलर फैमिली दी नीड्स नूं ही पूरा करने दे लई होवे तां इंडिया दे विच ज़्यादातर है जिहड़ी इंडियन एग्रीकल्चर ते सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ही हुंदी है। जिवें फॉर एग्जाम्पल आपां नूं पता है बई यूपी दे विच ना कणक दा झाड़ बहुत ज़्यादा हुंदा है, लेकिन पंजाब सेंटर पूल दे विच सब तो वध कणक दिंदा है। इहदे पिछे रीजन की है, यूपी दी प्रोडक्शन है, हुण वो उत्थे ही यूज हो जाती है, ठीक है। इहनूं तुसीं एवें भी रिलेट कर सकदे हो। नैक्सट क्वेश्चन आ जाओ। रेड क्लिफ लाइन डिवाइड करती है, अपन सब नूं पता है, बड़ा कॉमन जिहा क्वेश्चन है, मैनूं लगदा तुहानूं सारिआं नूं याद होऊगा, इंडिया ते पाकिस्तान। नैक्सट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए पोटेंशियल फॉर हार्नेसिंग ऑफ टाइडल एनर्जी इन इंडिया। हाँ जी आंसर दो मैनू। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब जो भी पोटेंशियल वर्ड आएगा पावर, फॉर हार्नेसिंग ऑफ टाइडल एनर्जी इन इंडिया, कि किस दे कोल पोटेंशियल है। गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे, गल्फ ऑफ कैम्बे जिहड़ा इसका करैक्ट आंसर आएगा। हाँ जी तुसीं मैनूं आंसर देना है कि कित्थे है गल्फ ऑफ कैम्बे। हाँ जी गल्फ ऑफ कैम्बे। देखो गल्फ ऑफ कैम्बे है जिहड़ा ये एक्चुअल दे विच जिहड़ा है तुसीं मैनूं आंसर देना है कि गल्फ ऑफ कैम्बे है जिहड़ा वो कित्थे है। देखो गल्फ ऑफ कैम्बे इहनूं खंबात दी खाड़ी भी कह दिंदे आ, जिहड़ा लेट्स से कि जिहड़ा वैसटर्न एरिया जिथों गुजरात शुरू होंदा है ना, जिथे नर्मदा ते ताप्ती निकलदियां खत्म होंदियां, मतलब अरब सागर दे विच उस एरिया दे बारे कह दिंदे आ, उहनूं गल्फ ऑफ कैम्बे कहते हैं, ठीक है, याद रखियो। नैक्सट देखो, द टिपिकल एरिया ऑफ साल फॉरेस्ट, साल दे जिहड़े दरख्त है वो कित्थे सब तो ज़्यादा है, तो वो कित्थे सब तो ज़्यादा है, वो मालवा प्लेट्यू च सब तो ज़्यादा है। स्टेट हैविंग ए लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट, किहड़ी स्टेट है जिथे जंगल सब तो ज़्यादा है, तो मध्य प्रदेश। एक होर गल दस देना, मध्य प्रदेश दे विच ST मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब भी सब तो ज़्यादा है। तो गल दो गल्लां याद रखियां, जंगल भी सब तो ज़्यादा मध्य प्रदेश च है और मध्य प्रदेश दे विच सब तो ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया भी। नैक्सट क्वेश्चन देखो, द परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस कवर्ड बाय इंडिया, पूरे इंडिया का जिहड़ा कितना परसेंट है जिहड़ा अर्थ सरफेस का इंडिया ने कवर किया है, तो जो इंडिया ने कवर किया है 2.4% है पूरे अर्थ सरफेस का। Which of the following is are the major factors responsible for the monsoon type of climate in India? एक गल तुहानूं पता होएगी, हुणे आप डिस्कस करके हटे सी कि इंडिया दे विच जिहड़ी मॉनसून है 86%, मैं तुहानूं कहा सी ना पिछे एक क्वेश्चन आया सी जिहदे विच आया सी कि जिहड़ी वैसट साइड तो मॉनसून उड़दी है तो वो जिहड़े 86% कंट्रीब्यूट करदी है रेन दा इंडिया दे विच। हुण उन्हें एक क्वेश्चन पूछे इंडिया दा जिहड़ा मॉनसून टाइप दा क्लाइमेट क्यों है, उहदे पिछे रीजन की होवेगा। उहदे पिछे देखो लोकेशन तो इंडिया की है ही है, थर्मल कंट्रास्ट भी है, अपर एयर सर्कुलेशन भी है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन भी है, तो सारा कुछ ही है, सारा कुछ है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाला मूव करते हैं, द प्रेजेंट फॉरेस्ट एरिया ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सैटेलाइट डाटा इज। देखो वही क्वेश्चन आ गया, सैटेलाइट डाटा के अकॉर्डिंग। देखो मैं तुहानूं कहा सी ना भी गवर्नमेंट कह रही है कि साडा जिहड़ा एरिया वो 33% है या 33.33 है, बट सैटेलाइट इमेज के थ्रू अगर तुसीं देखोगे तो इंडिया का जिहड़ा फॉरेस्ट एरिया वो बहुत ज़्यादा घट रहा है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नैक्सट, इंडिया का हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल, इंडिया का जिहड़ा हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल है कित्थे, माउंट सिराम मेघालय, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, सी ऑप्शन है जिहड़ा इसका करेक्ट होएगा। नैक्सट देखो, the refineries are Mathura, Digboi and Panipat are set up by। देखो
डिगबोई का क्वेश्चन अगे भी आ गया। पहली गल डिगबोई कित्थे है, सब तो पुरानी ऑयल रिफाइनरी है, कित्थे है, आसाम दे विच है। कहंदा इन्हां सैटअप किने कीता है, जिहड़ियां अगलियां रिफाइनरी दा इन्हां नूं सैटअप किने कीता है, तां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है जिसने इन्हां नूं सैटअप कीता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव करदे हां। द प्रिंसीपल कॉपर डिपोजिट ऑफ इंडिया लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। जिहड़ा कॉपर दे भंडार है इंडिया दे विच कित्थे मिलदी है, तां कित्थे मिलदी है, अगेन सिंघभूम ते हजारीबाग ऑफ बिहार। ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू रिगार्डिंग जूम कल्टीवेशन। आ क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। जूम नूं स्लैश एंड बर्न भी कहंदे आ, डन। सैकेंड तो पक्का ठीक है जी। पहला ऑप्शन लभ लो जिथे सैकेंड आ रहा है, किहड़ी ऑप्शन च नहीं आ रहा, तो डी च नहीं आ रहा सर, कट दो, डी तो हो ही नहीं सकता, ए बी सी आ गया। इट इज़ लार्जली प्रैक्टिसिज्ड इन आसाम। आसाम दे विच सब तो ज़्यादा प्रैक्टिस इनू कीता जाता है, डन, आई एग्री। इहदा मतलब फर्स्ट भी होएगा। हुण फर्स्ट ते सैकेंड दोनों ऑप्शन होना चाहिए, ए टिक कर दो, हुण थर्ड रीड कर लो, ये आंसर आएगा। इन इट द फर्टिलिटी इज एग्जॉस्टेड इन फ्यू ईयर्स, ये भी सही है, डन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यरलुंग जैम्बो रिवर इन इंडिया इज नोन एज। यारलुंग जैम्बो जैंगबो रिवर इंडिया दे विच इस रिवर नूं की कहंदे है, ते इंडिया दे विच इस रिवर नूं ब्रह्मपुत्र कहंदे है। नैक्सट देखो, द सलाल प्रोजैक्ट इज ऑन विच रिवर। कहना जिहड़ा सलाल प्रोजैक्ट है किहड़ी रिवर ते बनिया है, तो सर चेनाब नदी ते बनिया है। नैक्सट देखो, द ओनली जोन इन द कंट्री दैट प्रोड्यूसेस गोल्ड इज आल्सो रिच इन आयरन। जिहड़ा इक्को एक जोन है जिथे जिवें आपां कीता सी ना भी आयरन कित्थे और सब तो ज़्यादा मिलता है। उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा आयरन तो इलावा गोल्ड भी सब तो ज़्यादा किहड़े जोन च मिलता है, उन्हें क्वेश्चन पूछा, तो आंसर आएगा सदरन जोन है जिहड़ा अपना इंडिया का साउथ है, जिहड़ा उत्थे आयरन तो मिलता है लेकिन गोल्ड भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पाइथन हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ जापान। जापान की हेल्प नाल आपां एक पाइथन प्रोजेक्ट है जिहड़ा उसनूं कंप्लीट कर रहा, वो कहंदा वो किहड़ी रिवर ते बनिया है। ठीक है, तो वो जिहड़ा प्रोजेक्ट बनिया है वो गोदावरी रिवर ते बनिया। जिवें हुणे आपां एक क्वेश्चन पढ़िया सी ना, सलाल प्रोजेक्ट कित्थे बनिया, तो चनाब नदी ते बनिया। पाइथन प्रोजेक्ट है जिहड़ा वो गोदावरी नदी ते बनिया। नैक्सट देखो, द परसेंटेज ऑफ इरीगेटिड लैंड इन इंडिया इज। हुणे क्वेश्चन है, इस तो पहला काफ़ी टाइम पहला क्वेश्चन आया सी स्टार्टिंग जी, भी नीयर अबाउट 70% लोग है जिहड़ा वो एग्रीकल्चर ते डिपेंड करती है। हुण जिहड़ी एग्रीकल्चर ते तो डिपेंड करती है, लेकिन कितना परसेंट इरीगेटिड लैंड है जिन्होंने सिंचाई होंदी है इंडिया के हिस्से, तो जो इसका करैक्ट आंसर आएगा 35%। हाँ जी, की आंसर आएगा 35%। नेक्स्ट देखो, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ पेनिसुलर इंडिया दैट इज कन्याकुमारी इज नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नो सर, साउथ ऑफ इक्वेटर, साउथ ऑफ कैप्रिकॉर्न, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। ध्यान नाल सोचो, मैंने इसका आंसर दो। जिहड़ा इंडिया का साउथर्न पॉइंट है कन्याकुमारी वो कित्थे है, तो देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो नीचे है पक्का, ये तो हो गया। कैप्रिकॉर्न तो छड्ड ही दो, इक्वेटर के नॉर्थ ते है, तो आंसर की आ गया, डी ऑप्शन है जिहड़ा उसका करैक्ट आंसर आ गया। द पास लोकेटेड एट द southern end of नीलगिरी हिल्स इन साउथ इंडिया इज कॉल्ड। इस पास नूं कहंदा की कहंदे आ, पास का मतलब हुंदा है दरे रस्ते, इसनूं पलघट गैप कहा जाता है। नैक्सट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर रिस्पोंसिबल फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ शुगर प्रोडक्शन इन साउथ इंडिया एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। कहंदा साउथ इंडिया दे विच नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन जिहड़ी रैपिड ग्रोथ हो रही है कादी शुगर प्रोडक्शन की। तो देखो आप जो भी तुसी इस टाइप के क्वेश्चन नूं पिक करना हो ना, तो ऑप्शन इहो जी पिक करो जिहड़ी आउट होवे, मतलब इन्हां चों ना जचदी हो। पहली गल लोअर लेबर कोस्ट, इंडिया तो लेबर कोस्ट दा तो कोई नहीं, उत्ते भी मतलब नॉर्थ साउथ दोनों साइड मिल सकती है, मतलब सी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो छड्ड दो, सी नहीं होगा, मतलब फस्ट सैकेंड ते फोर्थ च होएगा। हुण ऑप्शन देखो जिंदे च सी आ रहा होवे, बी ते सी दे विच सी आ रहा मतलब थर्ड आ रहा, तो बी ते सी नूं छड्ड दो, बनिया कि ए ते डी रह गया। हुण ए नूं रीड कर लो,
देखो जो डी है ना, डी ऑप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ एक्स्ट्रा फोर्थ आ रहा, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂ। पहले नंबर ते ना उस फोर्थ ਨੂੰ रीड कर लो। देखो लॉन्गर क्रशिंग पीरियड मैटर करता है तो मतलब फोर्थ सही होगा, फोर्थ होना चाहिए, फोर्थ होगा तो आंसर किया गया डी। डी अपना करैक्ट आंसर आ गया। हुण सारे ऑप्शन ਨੂੰ रीड कर लो। हायर पर एकड़ फील्ड ऑफ शुगर केन ये तो होएगा, हायर सुक्रोज कंटेंट ये भी होएगा, तो 2 आ गया। इस तो मतलब 1 2 ते 4 अपना करैक्ट आंसर। The city of Nasik is situated on the bank of Rich River। कहना नासिक जिहड़ी सिटी है वो किहड़ी नदी के किनारे ते बनी हुई है, नासिक सिटी। हाँ जी आंसर दो मैनूं, जिहड़ी नासिक सिटी है वो किहड़ी नदी के किनारे ते वसी हुई है। हाँ जी मैं जो इसका करैक्ट आंसर होएगा, इसका करैक्ट आंसर होएगा गोदावरी। नेक्स्ट, The Gulf of Mannar is situated along the coast of which of the state in India? Gulf of Mannar, मनार की जिहड़ी गल्फ है वो किहड़ी इंडिया दियां जिहड़ी किहड़े पासे बनी है, सीधा ऐ कह दो बस। करनाटका च है, केरला च, तमिलनाडु, तेलंगाना, तो तमिलनाडु दे विच है गल्फ ऑफ मनार। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following state is in the Nanga Parbat peak located? कहंदा किहड़ी स्टेट दे विच नंगा पर्बत पीक लोकेटेड है, तो जिहड़ी नंगा पर्बत पीक लोकेटेड है वो जम्मू ते कश्मीर दे विच लोकेटेड है। नेक्स्ट देखो, Which of the following river have almost the same point of emerging? Emerging point almost same है। ब्रह्मपुत्र ते इंदस का जिहड़ा emerging point है वो almost same है। देखो एक साइड नॉर्थ वाली साइड इंडिया दे इंदस चली जाती है, साउथ वाली साइड है जिहड़ी वो ब्रह्मपुत्र चली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन द यूपी एंड एमपी स्टेट द ज्वाइंट राजघाट रिवर वैली प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड ऑन। एक राजघाट रिवर प्रोजेक्ट है वो कित्थे लॉन्च किया है, तो बेतवा, बेतवा जिहड़ी रिवर है उस दे उत्ते लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखो, हाउ मैनी नैशनल वाटरवेज आर देयर इन इंडिया? इंडिया दे विच नैशनल वाटरवेज कितने हैं, तो आंसर आएगा 9 नैशनल वाटरवेज। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन, इंडिया की कोस्ट लाइन लेंथ कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखो, द मेन स्ट्रीम ऑफ रिवर गंगा विच फ्लोज बियॉन्ड फरक्का इज नोन एज। फरक्का तो बाद जिहड़ी गंगा, गंगा नूं की कहा जाता है, तो उसनूं पद्मा कहा जाता है। ठीक है, फरक्का वाला पॉइंट है जिथे गंगा जो टर्न लेती है, तो उस तो बाद गंगा जी साउथ वाली साइड से जो चली जाती है तो उन्होंने पद्मा कह देंगे है। ठीक है, देखो एक दो गंगा के हिस्से है, एक तो पद्मा एक हुगली। हुगली तो हो गया जोड़ा उहदे चो गुजरता है वैस्ट बंगाल चो, पद्मा वो हो गया जोड़ा चो बंगलादेश चो गुजरता है। तब यही तो उन्हें पूछा सी भी इस पॉइंट से ना एक्चुअल च अलग होंगे है, तो उन्हें कहा सी भी फरक्का पॉइंट तो बाद मेन स्ट्रीम गंगा दी नूं की कहा जाता है, तो उन्होंने पद्मा कहा जाता है। गुवाहाटी सिचुएटेड ऑन द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र। देखो गुवाहाटी है कितने आसाम च, ते आसाम चो किहड़ी नदी निकलती है? ब्रह्मपुत्र। तो याद कर लो गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र ते। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज द पयमगंस्टी मोनेस्ट्री सिचुएटेड? तो आंसर जो इसका आएगा सिक्किम, सिक्किम दे विच है जी। नेक्स्ट, वेयर इज थट्टीकट बर्ड सेंचुरी लोकेटेड? कित्थे है जिहड़ी वाली बर्ड सेंचुरी है, कित्थे लोकेटेड है? तो केरला दे विच लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर ए है जिहड़ा बिल्कुल करैक्ट होंदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन रिवर्स फॉर्म्स एन एस्चुरी? किहड़ी रिवर है जिहड़ी वो एस्चुरी फॉर्म करती है? जिहड़ी तापी है, तापी नदी है जिहड़ी वो एस्चुरी फॉर्म करती है। नेक्स्ट, इंद्रावती इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? इंद्रावती है जिहड़ी किहड़ी नदी की ट्रिब्यूटरी है? तो वो गोदावरी नदी की ट्रिब्यूटरी है। बिटवीन विच रेंजिस डट द कश्मीर वैली इन हिमालय लाई? कहंदा किहड़ी रीजन दे विच कश्मीर वैली लाई करती है? तो कश्मीर वैली है जस्कर ते पीर पंजाल रेंज दे विच लाई करती है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडिया डज नॉट कम अंडर द जोन ऑफ हाई सिस्मिक इंटेंसिटी? केड़ा जिहड़ा जोन है वो इंडिया का हाई सिस्मिक जिहड़ी डेंसिटी है उसकी इंटेंसिटी के अंडर नहीं आउंदा, तो आंसर आएगा कर्नाटका प्लेट्यू। नेक्स्ट, हाउ मैनी आइलैंड देयर इन ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप? मोस्ट इंपोर्टेंट है, लक्षद्वीप दे विच जिहड़े 36 आइलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द इन विच स्टेट डू द मानसून अराइव्स फस्ट। आ क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है जी। किहड़ी स्टेट दे विच मानसून पहला आउंदी है, ते जदों मानसून अपने वैसट साउथ तो उठदी है तो केरला दे विच सब तो पहला आउंदी है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आइलैंड लाइन लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया ते श्रीलंका दे विच किहड़ा आइलैंड लाई करदा है? तो रामेश्वरम। याद करा देना, देखो श्री रामचंद्र जी श्रीलंका गए सी ना, तो उत्थों याद रख लियो राम रामेश्वरम। नेक्स्ट देखो, विच आर द कोल रिजर्व ऑफ इंडिया लार्जली कंसनट्रेटेड। जिहड़ी कोल रिजर्व है वो कित्थे कंसनट्रेटेड है इंडिया दी? तो कित्थे है? दमोदर वैली दे विच है कोल रिजर्व। नेक्स्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सदਰਨ मोस्ट हिल्स। किहड़ियां जिहड़ियां वो सदਰਨ मोस्ट हिल्स है, तो जो इसका आंसर आएगा कार्डामम हिल्स है जिहड़ियां वो सदਰਨ मोस्ट हिल्स है। नेक्स्ट देखो, विच रेफरेंस टू द क्लाइमेट ऑफ इंडिया द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जिहड़ी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो अरेबियन सी इसका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट नियर महाबलेश्वर। महाबलेश्वर दे कोले कहंदा किहड़ी रिवर है जिहड़ी वो ओरिजिनेट हुंदी है? तो आंसर आएगा कृष्णा नदी, ठीक है जी। ये अपना अपने क्वेश्चन सी जी जियोग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, बिकॉज एक मटीरियल कलैक्ट करन ते सब कुछ करन ते बहुत ज़्यादा एफर्ट लगते हैं। तो असीं सिर्फ एक ही चीज़ चाहुंदे हैं कि तुहाडे जिहड़े आउण वाले सारे एग्जाम है क्वालीफाई होने चाहिए है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स अ लॉट।